السلام علیکم گائز، ایک نیو الٹراساؤنڈ رپورٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا بہت زیادہ پیار اور میرے سلام۔ تو رپورٹ شروع کرتے ہیں جی۔ پیشنٹ کا نام ہے جی آسیہ علی رضا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو الٹراساؤنڈ رپورٹ کی ڈیٹ ہے جی 12 ستمبر 2021۔ الٹراساؤنڈ کو اس ڈیٹ کو اس کا الٹراساؤنڈ رپورٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ obstetric الٹراساؤنڈ ایگزامینیشن اس کا ہوا تھا اکارڈنگ ٹو ISUOG پروٹوکول 2010، یعنی کہ 2019 میں یہ پروٹوکول جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس کے مطابق تمام الٹراساؤنڈ رپورٹس جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ یہ جو الٹراساؤنڈ رپورٹ ہے وہ اس اصول کے مطابق بنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی اس میں آپ کو فائنڈنگز نظر آئیں گی وہ اس الٹراساؤنڈ رپورٹ کے اس پروٹوکول کے مطابق ہوں گی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی سنگل الائیو فیٹس، مطلب جو بچہ ہے وہ سنگل یعنی کہ ایک ہے، الائیو مطلب کہ زندہ ہے، فیٹس مطلب فیٹس جو بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کو فیٹس کہتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ جی اس کا جو فیٹل ہارٹ ریٹ ہے یعنی کہ بچہ کا جو دھڑکن ہے وہ کہتا ہے کہ جی 163 پر منٹ، یعنی کہ اس کے جو دھڑکنے کی مقدار ہے وہ 163 دفعہ ایک منٹ میں وہ دھڑک رہا ہے۔ ریتھم از نارمل، یعنی کہ اس کے دھڑکنے کی تعداد، مقدار اور سب کچھ جو ہے وہ دھڑکنا جو ہے وہ اس کا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو بائیومیٹری ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں بائیومیٹری جو ہے وہ اینڈ پہ بتاتی ہوں، باقی ہم اپنا جو ہے وہ الٹراساؤنڈ رپورٹ مزید پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی رپورٹس میں بتایا ہوا ہے کہ بچے کی جو پریزنٹیشن ہے وہ جو ٹھیک پریزنٹیشن ہے وہ ہوتی ہے جی، ہاں جی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو بچے کی پریزنٹیشن ہوتی ہے، جو نارمل پریزنٹیشن ہوتی ہے، اس کی جو لیگز ہوتی ہیں ٹورڈز مدر ہیڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ ماں کے سر کی طرف جو اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں وہ ماں کے سر کی طرف ہوتی ہیں، اور جو اس کا ہیڈ ہے یعنی کہ جو اس کا سر ہے وہ سروائکل کنار یعنی کہ بچے دانی کے منہ کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بریچ پریزنٹیشن، ٹھیک ہے۔ بریچ پریزنٹیشن کا کیا مطلب ہے جی کہ جو اس کی ٹانگیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ نیچے کی طرف ہو گئی ہیں، یعنی کہ بچے دانی کے منہ کی طرف ہو گئی ہیں، اور جو اس کا سر ہے وہ ٹورڈز دی مدر ہیڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں کے سر کی طرف جو ہے وہ اس کا ہیڈ ہو گیا ہے، جو کہ بریچ ہو گیا ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ جی الٹا ہو گیا ہے، بریچ ہو گیا ہے، الٹا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جی وہ کیا کہتا ہے کہ جی لونگیٹوڈنل لائی ایٹ ٹائم آف سکین۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ لونگیٹوڈنل لائی کا مطلب ہے تو پھر وہ لونگیٹوڈنل لائی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جی بچہ ایسے لیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایسے، یعنی کہ سر جو ہے وہ اوپر ہے اور ٹانگیں جو ہیں وہ نیچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ ٹرانسفر جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ ترچھا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ پڑا تو ایسے ہی ہوا ہے لیکن اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ الٹی ہے، یعنی کہ بچے کا جو سر ہے وہ ٹورڈز دی مدر ہیڈ ہے، یعنی کہ ماں کے سر کی طرف ہے، اور جو اس کی ٹانگیں ہیں وہ سروائکل کنار کی طرف ہے، یعنی کہ بچے دانی کے منہ کی طرف ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی لائکر از ایڈیکویٹ، یعنی کہ جو بچے کے ارد گرد پانی کی مقدار ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی دی لارجسٹ ورٹیکل پاکٹ، وہ اس میں اس نے AFI نہیں دیا، یعنی کہ امنیوٹک فلوئڈ انڈیکس نہیں دیا، اس نے صرف ایک ہی پاکٹ کو جو ہے وہ مہیا کر لیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 4 کونے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چاروں کونوں کی آپس میجرمنٹ کو پلس کر کے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جب وہ انڈیکس ہو گیا، AFI ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اس نے کہا ہے کہ لارجسٹ ورٹیکل پاکٹ، یعنی کہ اس میں سے جو دیکھی گئی سب سے بڑی پاکٹ تھی وہ اس نے دے دی ہے، یعنی کہ
5.3 सेंटीमीटर ये नॉर्मल होती है, ठीक है। तो कह लो कि जी प्लेसेंटा इज पोस्टीरियर वॉल यानी कि ठीक है प्लेसेंटा, और नो प्रीवियम मीन टू से कि प्लेसेंटा जो है वो बच्चेदानी के मुंह के आगे नहीं है, ठीक है, यानी कि वो पीछे ही है, जहाँ पे उसको होना चाहिए वहीं पे है, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड इज फन, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है वैसे वैसे प्लेसेंटा भी मैच्योर होता है, उसकी मैच्योरिटी भी जैसे जैसे मतलब बच्चा मैच्योर हो जाएगा वैसे वैसे प्लेसेंटा मैच्योर होता रहता है। यानी कि वो कहता है कि जो इसका मैच्योरिटी रेट है वो 1 है, यानी कि इस एज के मुताबिक जो इसका कह लो कि मैच्योरिटी रेट है, जितना इसको मैच्योर होना चाहिए था वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जी थिकनेस जो है वो इसकी प्लेसेंटा की जो थिकनेस है वो कहता है कि जी 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहता है कि जी एनाटॉमिक सर्वे में वो क्या कहता है जी, वो कहता है कि जी नो इंट्राक्रैनियल अनोमली सीन, मतलब बच्चे के सर में किसी किस्म की कोई अनोमली नहीं है, यानी कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, बच्चे के सर में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ठीक है। एट्रियम, वो कहता है जो एट्रियम की जो मेजरमेंट है वो है जी 5.1 mm, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहता है कि जी पोस्टीरियर फोसा, ठीक है, जो सेरिबेलम के उसके एट्रियम के बिल्कुल साथ होता है, वो कहता है कि जी पोस्टीरियर फोसा जो है वो 4.8 mm है, यानी कि इन दोनों चीज़ों से हमें बेसिकली इन दोनों चीज़ों से हमें पता चलता है कि बच्चे के सर में पानी तो नहीं है। इन दोनों चीज़ों से हमें अंदाज़ा होता है कि बच्चे के सर में पानी तो नहीं है, ठीक है। फिर वो कहता है कि जी सेरिबेलम नॉर्मल, यानी कि ये भी बच्चे के सर के पीछे, मतलब बिल्कुल सर में पिछली तरफ होता है, ठीक है, सेरिबेलम, ठीक है, ये भी कहता है वो नॉर्मल है। नॉर्मल CSP एंड CC एंड फोरिक्स, यानी कि मुख्तसरन ये बात हुई कि ये जो है जो इंट्राक्रैनियल अनोमली किसी किस्म की नहीं है। फिर वो कहता है कि जी इंटैक्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी कि जो बच्चे के ऊपर जो वॉल है वो भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि कोई किसी किस्म का कोई हर्निया वगैरह नहीं है, ठीक है। फिर वो आ जाता है भाई मेजरमेंट पे आ जाते हैं जी। BPT का क्या मतलब होता है कि जी बच्चे के सर का AP डायमीटर, वो कहता है कि 37 mm, यानी कि 17, इस पे जो मेजरमेंट पे जो कितने वीक्स बने, सर के मेजरमेंट पे कितने वीक्स बने, वो कहता है कि जी 17 वीक्स 2 डेज, ठीक है। ये प्लस का साइन जो वो इंडिकेशन है कि जी ये आगे जो है वो दिन है, ठीक है। फिर वो कहता है कि जी FL का क्या मतलब होता है जी हमारे टांगों की मेजरमेंट, ठीक है, जो मसाने से हड्डी हमारी टांग की शुरू होती है और घुटने पे आके ख़त्म हो जाती है, उसकी ये मेजरमेंट है, ठीक है। वो कहता है कि जी ये 21 mm है, और इस पे जो वीक्स बने हैं जी वो 16 हफ्ते 2 दिन हैं, ठीक है। फिर उसको कहता है कि जी AC का क्या मतलब होता है जी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंसेस, यानी कि बच्चे के पूरे पेट के मेजरमेंट उसने ली है, ठीक है। वो कहता है कि जी जो बच्चे का पूरा पेट है जी वो है जी 105 mm, 105 mm है वो, 16 हफ्ते 4 दिन, उस पे वीक्स जो आए हैं वो 16 हफ्ते 4 दिन है, ठीक है। फिर वो कहता है कि जो बच्चे का जो मैंने जब पूरे हेड की मेजरमेंट ली है जी, फिर वो बना है जी हेड सर्कमफ्रेंसेस, और उसकी मेजरमेंट है जी 134 mm। वो कहता है कि जी ये है जी 17 हफ्ते 0 दिन, मतलब पूरे 17 हफ्ते। फिर वो कहता है ये इन सबको जो प्लस माइनस करके जो, यानी कि इन सब की मेजरमेंट को कलेक्ट करके जो हमारे पास जो मेजरमेंट बची है, यानी कि जो टोटल वीक्स हैं, वो कहता है gestation एज इज 16 वीक्स 6 डेज, ठीक है। जो gestation एज है वो 16 वीक्स 6 डेज है। फिर वो कहता है कि जी EDD मतलब एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट,
डिलीवरी डेट अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड। वो कहते हैं अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के मुताबिक जो इसकी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट है वो कहता है कि जी इसकी है जी वो 21 फरवरी 2022, यानी कि 21 फरवरी 2022। ठीक है जी। तो ये जितनी जल्दी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, आपकी ईडीडी जो है जी वो उतनी ही मतलब करेक्ट आती है। ठीक है। और या फिर आपके लास्ट मंथ ऑफ पीरियड से हम अंदाज़ा लगाते हैं, वो भी ईडीडी जो है वो बिल्कुल ठीक होती है। ठीक है। और जैसे जैसे अब आप मज़ीद अल्ट्रासाउंड करवाए जाएंगे, अल्ट्रासाउंड की जो फाइंडिंग्स हैं, जो डेट होती है, ईडीडी जो है होती है, वो जो एक दफ़ा आ जाती है वो फिर हमेशा से वही रहती है। ठीक है। न्यू अल्ट्रासाउंड करवाने से फिर जैसे कि ये पेशेंट अगर 26 वीक्स पे जाके अल्ट्रासाउंड करवाता है तो उसकी यकीनन ईडीडी और आएगी। ठीक है। लेकिन जो है वो करेक्ट नहीं होगी। ठीक है। वो यूनिक नहीं होगी, उसमें चेंजिंग हो सकती है। लेकिन जो जो ये अल्ट्रासाउंड ये जो इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की यानी कि अर्लीस्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स होती हैं और जो कह लो कि ईडीटी होती है वो बिल्कुल करेक्ट होती है, यूनिक होती है। ठीक है। फिर वो कहते हैं इफ़ अवेलेबल, वो इसी जो मैं आपको बात समझा के हटी हूँ वो दूसरे फिक्रे में इसी बात को डिस्कस कर रहा है। वो कह रहा है कि जी इफ़ अवेलेबल कंसीडर ईडीडी अकॉर्डिंग टू एलएमपी, यानी कि आपके लास्ट मंथ ऑफ पीरियड्स की जो डेट थी उसके साथ उसके हिसाब से आप बना ले, या फिर अर्लीस्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट यानी कि इससे भी पहले जो आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाई है उसके मुताबिक आप समझ लें। ठीक है। तो मेन मकसद जो आज वीडियो बनाने का था वो यही था कि ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होती है। ठीक है। ब्रीच प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है जी कि बच्चे का जो सर है टुवर्ड्स द मदर हेड है और बच्चे की जो टांगे हैं वो बच्चेदानी के मुंह के आगे हैं, यानी कि मुंह की तरफ हैं, यानी कि ये ब्रीच है, यानी कि उल्टा है। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है, आपकी शफकत होती है मेरे लिए। मज़ीद अगर आप कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पे बहुत सारी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं आपके फ़ायदे के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। और मज़ीद आप अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, अच्छा मशवरा ले सकते हैं। और अगर आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सीखनी हो कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बनाते कैसे हैं, इंशाल्लाह आपकी उसमें भी मदद की जाएगी। ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।